Hello students. So once again I am here with the remaining part of the chapter The Snake and the Mirror. Last time which we have started this chapter The Snake and the Mirror, in which we saw that how the homeopath doctor is narrating his incident which occurred when he came into clash with a snake, and how he was able to survive with that. This thing we are going to see over here in today's part. Now at first we saw that how the homeopath doctor in his class is narrating an incident, and when he was narrating this incident about the snake in his class, he was saying to his students that how he used to live without having any facilities in his room, and how once a snake came into his room on that table and landed on his shoulder. Before that, we read that first he took some decisions about his life. First of all, that he make a decision of looking handsome all time. Okay, to admire, he was admiring himself in the mirror, constantly watching in the mirror and trying to see himself as a handsome, because he was a bachelor and a doctor too. Then he took a decision to grow a mustache, to look handsome, and to shave daily. After that, he decided that he would marry to a woman, a lady who is a doctor. Okay, having plenty of money, good medical practice, and she had to be fat, moti honi chahiye, so that if he does any mistake, she could not run after him or catch him. Now, when he was thinking all such things, we read here that how he came, he faced a snake. Okay, so as it turned back to see what kind of noise is coming from his bag, what he saw, the snakes landing on him and his turning at the same time, means what he saw, the snake landing on his shoulder. So till here we did in our last video. Let us proceed further. What had happened next? I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. So if this thing happens to us, what we do? Either we will start shouting, screaming, or we will tremble with fear. हम डर के मारे या तो कांपेंगे या चिल्लाएंगे. But here this person had not done any of these things. ही डिडेंट जंप, ना तो वो डर के मारे कूदा, ना ही डर के मारे वो ट्रेम्बल हुआ, शिवर हुआ, और ना ही वो चिल्लाया. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ये सब करने का उसको समय ही नहीं मिला. अगर वो दूर से उसको देखता तो शायद ये एक्शन करके वो भाग सकता था या कुछ कर सकता, लेकिन द स्नेक जस्ट ऑन हिज शोल्डर, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू ऑल दिस थिंग. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Now his hood was on his shoulder only, but his remaining part of that snake, he coiled himself to the left arm above the elbow. तो सांप ने क्या किया, अपने आप को उसके एल्बो के ऊपर वाले पार्ट में, हाथ के वहाँ पर अपने आप को लपेट लिया. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. हुड का मतलब उसने अपना फन फैला रखा था. ओके, हुड वॉज स्प्रेड आउट यानी फैलाना, फन फैला रखा था, और उसके फेस से, उसके हेड से डिस्टेंस से सिर्फ 3 या 4 इंचेस की दूरी पर वो था. It would not be correct to say merely that I sat down there holding my breath. यानी ये कहना सही, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली डेट आई स्टूड देयर होल्डिंग माई ब्रेथ का मतलब वो अपनी सांस तो उसने नहीं रोक रखी थी, लेकिन वी कुड से आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब वो बिल्कुल पथरा गया था, जस्ट लाइक अ स्टैचू. इवन इफ अ सिंगल मोमेंट, अगर वो हल्की सी भी मूवमेंट करता है तो द स्नेक वुड बाइट हिम. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, सो ही वॉज टर्न टू स्टोन, पूरा पथरा गया था, बॉडी बिल्कुल स्टिल, नो मूवमेंट एट ऑल, लेकिन उसका माइंड एक्टिव था. द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस.
In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. यानी कि पूरे कमरे में अंधेरा था, सिर्फ वो जो लैम्प केरोसिन लैम्प उसने जला रखी थी, सिर्फ उसकी लाइट का उजाला था उस टेबल तक. एंड आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक इंसान रहा है लेकिन कोई पत्थर की मूर्ति हो, विथ फ्लैश, हड्डी और मांस का ढांचा बैठा हुआ है, ठीक है, एज इफ नो मूवमेंट, नो लाइफ इन इट. सच वॉज द कंडीशन ऑफ दिस होम्योपैथ डॉक्टर एट दैट टाइम. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. Now ये जो कंडीशन उसने फेस की, तब उसको एहसास हुआ किसका? द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज़ गॉड. तब उसको एहसास हुआ कि वाकई में गॉड होते, भगवान एग्जिस्ट, रियली गॉड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. यानी भगवान से बड़ा कोई नहीं है. हाउ दिस कंडीशन ऑकर्ड, जो कंडीशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे साथ उस समय हो जाती है. तो व्हाट इट शोज दैट नथिंग इज़ इन आवर हैंड, वॉट एवर इज़ डन, वॉट एवर ऑकर्स, इट ऑल बिकॉज ऑफ गॉड. ये सब जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से ही होता है. एंड दिस थिंग ही फेल्ट एट दैट टाइम, दैट रियली गॉड एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. शायद मैंने कुछ कहा और उसको पसंद नहीं आया. किसको? गॉड को. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. तो डॉक्टर ये कहता है कि मैंने कोशिश की अपने इमेजिनेशन में, ठीक है, अपने दिमाग में ओ गॉड लिखना, विथ आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स विथ ब्राइट लेटर्स. ब्राइट यानी बिल्कुल चमकीले शब्दों में ओ गॉड लिखना. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. उसके हाथों में दर्द होने लग गया क्योंकि उस सांप ने अपने आप को पूरा लपेट रखा था वहाँ पर उसके हाथों पर. इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो, रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर. ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने लेड का रॉड उसके हाथों पे लपेट रखा हो. इतना हैवी और इतना टाइट तरीके से उस स्नेक ने उसके हाथों पर अपने आप को लपेट रखा था. ऐसे लग रहा था अ रॉड ऑफ मोल्टन फायर, यानी एक लंबा सा सरिया, मोल्टन फायर यानी पिघली हुई आग का बना हुआ वो सरिया जो उसको किसी ने उसके हाथ पर लपेट दिया है. वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. धीरे धीरे लेकिन बहुत ही पावरफुली वो उसके हाथों को, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियों को क्रश कर रहा हूँ. द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू. तो द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता था और उसके हाथों की जो ताकत थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी. ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ड्रेन का मतलब बह जाना. तो उसके हाथों की सारी ताकत, स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था. इवन इफ ही डिड अ सिंगल मूवमेंट, क्या हो सकता है अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. ओके, हल्का सा भी मूवमेंट उसका, स्नेक उसको काट सकता है, स्ट्राइक कर सकता है. डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, यानी मेरे सामने सिर्फ 4 इंच की दूरी पर मेरी मौत खड़ी थी. सपोज इट स्ट्रक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. अगर बाय चांस, सपोज वो स्नेक उसको काट लेता है तो वो क्या करेगा, उसको क्या मेडिसिन लेनी होगी. देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम. उसके रूम में कोई दवाई नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, यानी शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ़ डॉक्टर होगा जो डॉक्टर होने के बावजूद उसके घर में मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है. तो ये अपने आप को क्या कहता है? पुअर यानी बेचारा, फुलिश और स्टूपिड बेवकूफ़ डॉक्टर. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. तो जो मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी उसको मैं एक पल के लिए भूल गया और अपने आप पर ही हंसने लगा कि मैं कितना बड़ा और बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ, जो डॉक्टर होने के बावजूद अपने घर में दवाइयाँ
या इमरजेंसी के लिए जो टैबलेट्स चाहिए वो तक अवेलेबल नहीं है, वो मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं है। तो सच अ फुलिश डॉक्टर ही वॉज। इट सीम्ड as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. It seemed as if God appreciated that, मतलब जो उसने अपने आप के लिए कहा पुअर, फुलिश और स्टूपिड, तो शायद गॉड ने उसकी बात अप्रिशिएट की, यानी मान ली हो, सुन ली हो, ऐसा लग रहा था। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने अपना हेड, अपना फन दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसके चेहरे की तरफ था उसका हुड, वो उसने दूसरी तरफ यानी अपनी गर्दन घुमा ली स्नेक ने। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी नज़र किस पर पड़ी? मिरर पे। और वहाँ पर उसने जब अपनी रिफ्लेक्शन देखी, आई डू नॉट क्लेम डैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक डेट हैड एवर लुकड इन टू अ मिरर। तो वो कहता है कि मैं शायद ये क्लेम नहीं करता हूँ कि शायद ही किसी सांप ने पहले अपने आप को मिरर में देखा होगा, बट इट वॉज सर्टन, सर्टन मीन्स श्योर, डेट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन इस स्नेक को देखकर ये श्योर हो गया था कि वो डेफिनेटली अपने आप को उस मिरर में देख रहा है। Now as this snake was admiring itself in the mirror, okay, the doctor said, was it admiring its own beauty? क्या ये अपनी खूबसूरती को ही एडमायर कर रहा है, अपने आप को निहार रहा है? ये स्नेक जो है मिरर में अपने आप को खूबसूरती ढूंढ रहा है। Was it trying? You could see here in the pic here that how the snake is looking into the mirror to itself. To make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. तो यहाँ पर वो डॉक्टर सोचता है शायद ये सांप अपने आप को मिरर में देखकर, जिस तरह से इस डॉक्टर ने अपने आप को मिरर में देख के जो डिसीजंस लिए, टू ग्रो थिन mustache, okay, to look handsome, to shave daily, okay, and to have a smile on his face every time. So he thought that the snake might also be thinking the same thing. The snake would have taken an important decision about itself, that about growing a mustache or using eyeshadow and mascara, which is used for makeup by girls, और wearing a vermilion spot on its forehead, या फिर एक सिंदूरी कलर की बिंदी उसके फोरहेड पे लगाने की। तो ये चीज़ें डॉक्टर स्नेक के लिए सोचता है कि शायद इस तरह का डिसीजन स्नेक ले रहा हो। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन, व्हाट डिसीजन द स्नेक वुड हैव टेकन, दिस वुड बी द आंसर फॉर दैट थिंग। I don't know anything for certain. Means the doctor was not sure whatever he was thinking. What sex this snake? Was it a male or female? अब उसको ये भी श्योर नहीं था कि ये स्नेक जो है ये मेल है या फीमेल। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और डॉक्टर ये कहता है कि ये चीज़ तो मैं शायद कभी पता नहीं कर पाऊँगा। फॉर द स्नेक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, मतलब ये कि फिर उस स्नेक ने अपने आप को उस आर्म से अनकॉइल्ड किया और स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और फिर उसकी गोद में रेंगता हुआ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और उसकी गोद से रेंगता हुआ वो उस टेबल पर उस मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वो अपने आप को नज़दीक से देखना चाहता हो उस मिरर में। क्लोजर क्वार्टर मीन्स फ्रॉम नियर बाय। अपनी रिफ्लेक्शन वो पास से देखना चाहता है, मोर क्लोजली। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। तो ही सेज आई वॉज नो मोर मियर, मतलब कि मैं जैसे किसी ग्रेनाइट से या किसी पत्थर से काट के कोई मूर्ति बनाई हो,
बिल्कुल वैसा। तो नाउ ही टर्न नॉर्मल। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो जैसे ही वो सांप अपने आप को अनकॉइल्ड करके टेबल पर जाकर बैठ जाता है तो वो इतना तुरंत ही जैसे कि एक पत्थर का आदमी इंसान बन गया हो, फ्लैश एंड ब्लड। ही मूव्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप बॉडी को मूव करता है क्योंकि इतनी देर तक उसने अपने आप को बिल्कुल स्टिल रख रखा था। ही वॉज नॉट मूविंग एट ऑल and it is very difficult to sit in one position for a long time. So he feel relaxed. Still holding my breath, I got up from the chair. Holding my breath का मतलब अभी भी जैसे वो अपनी सांसों को देखता है कि वाकई में मेरी सांसें चल रही है कि नहीं, वो अपनी चेयर से उठता है। I quietly went out through the door into the veranda. दरवाजे के बाहर उस वरांडा में वो जाता है, बैक ओपन यार्ड में। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्ड। और वहाँ से मौका मिलते ही कूद के वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ से भाग जाता है। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ। Now here each of us heaved a sigh of relief. Few यानी जैसे हम सांस लेते हैं ना रिलैक्स होने की, वो साउंड। और यहाँ पर each of us यानी कौन, जो ये स्टोरी सुन रहे थे डॉक्टर की। तो जैसे पूरे इमेजिनेशन के साथ वो स्टोरी को सुन रहे थे तो ये लोग भी चैन की सांस लेते हैं कि हाँ डॉक्टर बच गए। फिर किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। तो उस स्टूडेंट ने किसी एक ने डॉक्टर से पूछा क्या वाकई में आपकी वाइफ फैट है, क्योंकि उसने बोला था कि आई विल मैरी टू अ फैट वुमन। तो ही सेज नो, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो वो कहता है कि नो, मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल थिन है और दुबली पतली है, और स्प्रिंटर का मतलब होता है फास्ट रनर, और तेज़ दौड़ने वाली है। समवन एल्स आज, फिर किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। तो जब आप वहाँ से भागे तो क्या स्नेक आपके पीछे आया। डॉक्टर सेड आई रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं इतना भागता रहा, एक बार दौड़ शुरू की घर से, सीधा अपने फ्रेंड के घर जाकर रुका। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ। फिर मैंने वहाँ जाकर पूरी बॉडी के ऊपर तेल रब किया। स्मीयर्ड में मतलब रब करना पूरी बॉडी पे, एंड टूक अ बाथ। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स। ओके, ही चेंज्ड हिमसेल्फ। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टूक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। फिर अगले दिन सुबह 8:30 बजे वो अपने फ्रेंड के साथ, कुछ लोगों के साथ अपने रूम पे जाता है ताकि वो जो अपनी चीज़ें हैं वहाँ से ले सके, ला सके। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। तो वहाँ पहुँचने पर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सब कुछ गायब था, बहुत कम चीज़ें बच गई थी उसके कमरे में साथ ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, यानी कोई चोर, क्योंकि वो घर दरवाज़ा खुला छोड़ के भाग गया था, तो रात भर में किसी चोर ने वहाँ पर चोरी कर ली। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा रूम साफ कर दिया था उस चोर ने। बट नॉट रियली, लेकिन पूरा नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, यानी उस चोर ने जो चीज़ नहीं चुराई थी, एक चीज़ वो छोड़ के चला गया था जो इस डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। वो क्या, वॉट वॉज दैट, पूछते हैं एक स्टूडेंट, उसको पूछता है वो क्या था। तो डॉक्टर कहता है माई वेस्ट द डर्टी वन, यानी मेरी गंदी सी मट मैली बनियान जो मैं वहाँ टांग के आया था वो वहीं पर टंग रही थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी उस चोर में भी साफ़ सफाई की इतनी सेंस है कि वो मैला बनियान नहीं लेके गया, बाकी सब चुरा कर लेकर चला गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। यहाँ पर उसने उसको रास्कल कहा है, ठीक है, यानी दुष्ट।
ठीक है, तो कहता है कि वो चाहता तो इसको अपने साथ ले जाता और साफ साबुन और पानी से धोकर उसको यूज़ कर सकता था, बट ही डिडंट डू इट। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर एक जना और पूछता है कि आपने उस स्नेक को वापस देखा अगले दिन? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसता है और बोलता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, अब तक तो मैंने उसको एक भी बार नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये शायद वो सांप था जो अपनी ही ब्यूटी से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वो बिना कुछ किए वहाँ से चला गया और वापस नहीं आया। सो इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जोक ओवर हियर, means these things does not really happens that the animals admire their beauty in the mirror. Okay, but it is just kind of humorous story he want to speak over here. Okay, so here we have completed this chapter. Thank you.